It's been 5 days since 23-year-old Neha Hiremat, daughter of a Congress corporator in Karnataka, was stabbed in broad daylight on her college campus. The accused, Fayaz Khondu Nayak, who had fled from the scene, was arrested by the police within hours of the gruesome crime. Neha was a first-year MCA student and Fayaz was earlier her classmate. And this murder took place after she spurned him. The murder has since sparked widespread outrage and has also snowballed into a political slugfest. Why? Because we are bang in the middle of election season. In fact, the polling is to take place in the area where the murder took place in the third phase of the Lok Sabha polls. Today, protests were staged in various parts of Karnataka by the BJP and ABVP demanding justice for Neha. In fact, her father himself has said that he is not happy with the investigation that has happened so far, that there is a cover-up underway. He's demanded a CBI probe. The state government, though, says that the CID investigation that they have asked for is enough. In Hubli, there's been a murder of a Hindu girl. The father is saying it's a bigger conspiracy at play and probably the CBI should take up the investigation. Correct, because he understands the state of law and order in Karnataka. When a Congress corporator, who happens to be the father of the deceased girl, when he's speaking from his heart, he don't trust the agencies here, nor does he trust the government here. So what more can I add to it, sir? He's speaking from his heart, which is the truth. The law and order after Congress has assumed charge has gone to dogs. And this thing the Congress is also shamelessly defending. Victim shaming, character assassinating. Have you seen this kind of governance here, sir? What a sad state of affairs in Karnataka. A Congress leader's daughter, Neha Hiremat, is murdered in broad daylight by Fayaz, but Congress is not standing with the family. Congress is standing with the accused mindset. And Nadda ji, the Bharatiya Janata Party, they are standing with the family. They have assured the family that BJP will continue to fight for justice for Neha and that they have demanded CBI probe in the matter and that the BJP supports this demand. Because from day one, Karnataka government and Karnataka Home Minister, Chief Minister are trying to put cover on the issue. When the father is saying one thing, CM and HM, they are saying that this is love affair. They are insulting Neha. If the daughter of Congress leader is not safe and she is not getting justice, who will get justice in Karnataka? I condemned the incident. Yesterday only I made it very clear. I condemned the incident. I have told the police people to investigate seriously and to see that the culprit is punished. As per the law, the culprit is to be punished. So that I told police people. The death issues should not be, political parties should not take advantage of the death issue. The political BJP is known for it. They are taking the issues as political issue. All right, joining us now on the show, we have Niranjan Hiremat, Neha's father. Niranjan जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. आज सरकार ने CID का प्रोब ऑर्डर किया है नेहा के मर्डर में. आपने CBI की मांग की थी. क्या आपको लगता है कि CID प्रोब काफी है? अभी फिलहाल हमने 5 दिन से डिमांड रखा था मैडम कि जिस दिन हत्या हुई है 18 तारीख को शाम को 5 बजे, उस दिन से पकड़ के अभी तक हम यही डिमांड कर रहे थे सरकार को कि लोकल प्रशासन से हमारे को न्याय नहीं मिल रही है. यहाँ से कमिश्नर से हमारे को कोई उसका तहकीकात सही नहीं हो रही है. हम एविडेंस भी दे रहे हैं उनको, सारा नंबर भी दे रहे हैं. सोशल मीडिया में जो आ रही है उनको प्रोवोक करने के लिए लोग जितने भी थे उनका नंबर दिया है. और जितने भी ये लोगों ने जाल जो पीछे इसके षड्यंत्र किया हुआ थे उनका नाम दिया. अभी तक किसी को सिंगल भी उन्होंने अरेस्ट नहीं किया है. वो डिमांड मैंने अपना मीडिया थ्रू मैंने बोला हुआ था और मेरा सरकार को भी मैंने बोला हुआ था. और मेरे जितने भी एसोसिएशन वाले हैं, सारे पार्टी लीडर्स, सारे हमारे जितने भी निगम पार्षद है और जितने भी एमएलएज है, सारे पार्टी के एमएलएज भी उन्होंने डिमांड किया था. तो ये तहकीकात जो है ना गलत रास्ते में जा रहा था. तो अभी सीएम ने अपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वो सही रिपोर्ट लेके अपने को CID को दिया हुआ है.
पर आप सीबीआई की मांग क्यों कर रहे हैं? इतने दिनों से आपने सीबीआई की मांग क्यों उठाई है? सीआईडी अभी तो रेफर हुआ मैडम अपना राज्य सरकार से। अभी वो लोग तहकीकात के लिए आएंगे और जिसका नाम लिया हुआ मैं उसको अरेस्ट भी करना है पहला। उसके साथ साथ जितने भी इसको प्रोवोक करने का काम किया हुआ, आज एक दिन का काम नहीं है ये टोटली षड्यंत्र है। उनके बारे में हम लोग सारा रिपोर्ट दिया था लोकल प्रशासन के लिए, उनके पास सारी रिपोर्ट है कमिश्नर या लोकल कमिश्नर को, लेकिन वो काम नहीं किया। अभी सीआईडी वो भी रिपोर्ट लेके उनको इमीडिएटली अरेस्ट करना है, उसके बाद तहकीकात के लिए और रिपोर्ट मिलेगा। निरंजन जी, ये बार बार आप जो षड्यंत्र कह रहे हैं, क्या षड्यंत्र है? खुल के बताइए। और ये कौन लोग हैं जिनका नाम आपने पुलिस को लिख करके दिया है? एक माफिया है मैडम ये इसके पीछे जो है ना, ये सॉफ्ट कॉर्नर के जितने भी स्टूडेंट है ना, ये बेस वाइज है, एक दिन का नहीं है, ये सालों साल से चलते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ को इन्वॉल्वमेंट करके जो दूसरे राज्य में दुर्घटना होती थी वो आज हमारे कर्नाटक में आई है और नॉर्थ कर्नाटक में आया हुआ है। तो ये दुर्घटना में वहाँ से लोग इधर एक्टिव हो गए और इसको षड्यंत्र के लिए ऐसे लोगों को प्रोवोक करके तैयार करके छोड़ा हुआ है। और उसमें अच्छे अच्छे फैमिली के, अच्छे अच्छे स्टूडेंट के और बैकग्राउंड रहे सो उनको टारगेट किया हुआ है। तो टारगेट करके उनको ये षड्यंत्र पहला दोस्ती करना और अनेक उसके बारे में मैं पुलिस इनको बोलने के लिए बोला हुआ है। आज भी मैं मीडिया थ्रू बोलने के लिए चाहता हूँ। उसके पीछे बहुत सारी षड्यंत्र चली हुई है। तो आज एक दिन मेरा बेटी का हत्या नहीं कर सकते, इसके पीछे सब एंगल टू एंगल वो अलग अलग तरीके से काम करके हत्या किया हुआ है। एक आदमी डायरेक्ट नहीं कर सकता है। वो एक स्टूडेंट था, इज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट एट केली इंस्टीट्यूट एट प्रेजेंट। तो इसी हिसाब से मेरे को सारा एंगल पे उसको इन्फॉर्मेशन गया हुआ है। क्लास पे आईएएस हो, वो क्लास पे है कि नहीं है, कितना पीरियड बैठा हुआ है, कब आ रही है, अंदर कब आ रही है, बाहर कब जा रही है, कार कब ड्रॉप कर रहा है, कब पिकअप करने के लिए आ रहा है, कौन सी गेट से बाहर निकल रहा है, सारा इसमें टीम वर्क है। तो हमने लोकल इंक्वायरी भी, मैंने अभी 10 दिन का जो टीवी फुटेज था वो भी मैंने मंगाया। उन्होंने भी शिक्षण जो अपने एजुकेशन सोसाइटी उनसे पुलिस को दिया हुआ है। मैं सीबीआई को भी, सीआईडी को भी उनको लेने के लिए बोलता हूँ। मतलब उसमें सब डिटेल आ जाएगा। बाकी राज्यों की दुर्घटना कर्नाटका में आ गई है कहने का क्या मतलब है? मतलब कौन सी दुर्घटना, कौन से राज्यों से? आज केरला राज्य में ये हम लोग मीडिया में या नहीं तो अपने पेपर में, अखबार में या सोशल मीडिया में देखते थे और पिक्चर भी देखा हुआ था मैंने। वही स्टाइल में हमारा बेटे को षड्यंत्र किया हुआ है, उसको प्रोवोक किया हुआ है, उसी स्टाइल में काम किया हुआ है। तो वो इन्वेस्टिगेशन में सभी लोग अंदर आएंगे इस बार। मैं क्यों लड़ रहा हूं? मेरा बेटी का देहांत हुआ, मेरे को दुख है, मेरे फैमिली को दुख है, मेरे समाज को दुख है, मेरा साधु संत लोगों को दुख है, पूरा स्टेट को, राज्य को या अपना देशव्यापी हमारे को, सबको, भारत देश ही इसको देख रहे हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं। तो उन लोगों को क्यों डिमांड कर रहे बोले तो ये केरला स्टोरी जो पिक्चर आया था ना, फिल्म आया था, मूवी आया था, सेम स्टाइल में काम हुआ है। ये मेरे को इंटरनली मेरा को रिपोर्ट आई है और मेरे को भी मेरा बेटे का हत्या होने के बाद मालूम पड़ा है। वो अवॉर्ड करने के बाद उसको मालूम पड़ गया ये इसमें फंसा रहे हैं। तो उसने रेफ्यूज किया। तो रेफ्यूज करते करते वो उसने प्रपोज किया और रेफ्यूज किया। उनका खानदानी भी लोग भी इसमें प्रोवोक करिए। उसका पिताजी हो गया, उसका माता हो गया, उसका बहन हो गया और वो आरोपी जो फंसा हुआ है उसका वो आदमी है। लोकल इधर जो उनके कास्ट के लोग हैं, इधर ये जो ऐसा षड्यंत्र करने वाले अलग अलग लोग भी इधर शामिल पड़ा हुए हैं। तो इसलिए मैं सारा रिपोर्ट लेके बात कह रहा हूँ। मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं कर रहा हूँ, किसी जात के ऊपर इल्जाम नहीं कर रहा हूँ। जो माइंड सेट ये जो हिंदू लड़की लोगों को ऐसी चीज में फंसाने के लिए जो षड्यंत्र करना है, वो आज मैं एक
कारपोरेटर हूँ, मैं यहाँ पे निगम पार्षद हूँ, मेरा घर में सारे लोग आते हैं, सारे समाज के लोग रहते हैं, फ्री एंड माइंड रहते हैं हमको पता ही नहीं रहता है कौन क्या मन में रहता है। फ्रेंड सर्कल, हम कॉलेज फ्रेंड्स बोले तो हम ऐसा कभी बुरा भी नहीं सोचते, सभी आ जाओ, बैठो, चाय पियो, पानी पियो, क्या काम था, ऐसा सभी जनरली हम लोग सोशल थे, वो भी सोशल ही थी। उसको जब जबरदस्ती करने लगे, उसको थोड़ा लगा इधर कोई चल रहा है तो अवॉइड किया, वो डर भी थी, वो हमारे को नहीं बताया। छोटा सा बात उसका माताजी को बोला है, वो ओल्ड स्टूडेंट मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को बहुत फोन करता है, मेरे को बहुत ये प्रपोज कर रहा है, थोड़ा मम्मी कॉलेज को आ जाना, मेरे को लेने के लिए जाने के लिए आना करके। अभी उसका माताजी ने ये देहांत होने के बाद मेरे को ऐसे हिंट दे दिया, अभी बोला है, तभी मेरे को पता चला इसके पीछे क्या क्या है, मैंने स्टडी किया। तो ऐसा मेरे बेटे को फंसा के वो प्रवक जितने लोग किए थे ना उसमें कन्वर्ट करने के लिए वो मैंने अभी लिया हुआ है, अभी मेरे को आया हुआ है, रिपोर्ट भी आया, सबको मालूम भी है। और उनका मदर से भी ऑलरेडी मीडिया से बाइट दिया हुआ है, उसका पिताजी ने भी बाइट दिया है, और उसका बहन जो है सोशल मीडिया में वो सारे फोटो वायरल कर रही है। जो कॉलेज में चलता ना फंक्शन था, उसमें गैदरिंग में इन्वॉल्वमेंट था, वो कोई ये डांस प्रोग्राम में कहीं भी वो रहता है, उन्होंने वही क्लिक कर रखा हुआ है, उसका नाम बदनाम करने के लिए भी कोशिश किया। तो इसलिए ऐसे सारे एंगल में मैं ये बहुत षड्यंत्र से किया करके मैं बता रहा हूँ, पर निरंजन जी आरोप कर रहा हूँ उनके ऊपर। निरंजन जी, खुद उनके जो घर वाले हैं, जो फयाज के पेरेंट्स हैं, उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने कहा है कि जो उसने किया वो गलत है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये आप उसको लव जिहाद कह रहे हैं, पर ये एक दोस्ती थी, ये एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप थी। तो क्या इसको अब एक कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि हाँ मर्डर हुआ, गलत हुआ, बट क्या एक मर्डर को कम्युनल एंगल दिया जा रहा है? मैं कम्युनल इसको इल्जाम नहीं दे रहा हूँ, उसका खुद उसका मदर उसको बोल रहे हैं फांसी पे लगाओ, उसको सब पता था, उसका बेटी को भी पता था, उसका बेटे को भी पता था, तो उसने इमीडिएटली पुलिस को क्यों नहीं बताया? मेरा बेटी ऐसा गलत रास्ते में नहीं गई है, कोई प्रूफ है तो बताओ थोड़ा सा। ऐसा किसी चीज में जाने वाली लड़की नहीं है, वो आईएएस करने का उसका ये था, उसने उसको मन में आईएएस करने का विचार था उसको, तो वो सारे एंगल में इसको फंसाने का जो कोशिश किया है। ये कम्युनल नहीं दे रहा हूं मैं, कोई एक आदमी करने से उनका कम्युनल के लिए मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, वो भी गलत बोल रही है, उनको कम्युनल को मैंने आरोप नहीं कर रहा हूं, आज भी मैं बोल रहा हूं। कई उनके कम्युनल लोग जो विकृत माइंड से जो काम करते हैं, जो ये हादसा करने के लिए उनका एक टीम रचा हुआ है, उसका एक एसोसिएशन है, उनका मैं विरोध कर रहा हूं। आज मेरा बेटी मर गई है, उसको हत्या हुई है, दूसरा नया हत्या नहीं होना है। आज पूरी स्टूडेंट यूनियन पूरा देश में अल्लाह मचा हुआ है, कैसा रहना किसके साथ, गली में ये अपना माइनॉरिटी लोग रहते हैं और अपना स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, कैसा विश्वास करके उनके साथ हम लोग बातचीत करना है। नेबर्स रहते हैं, व्यापारी लोग रहते हैं, ये बदनाम करने, ये ऐसा काम करने से दूसरे लोगों को भी इफेक्ट पड़ा है। और आज मैं आपको और एक कुछ बोलता हूँ, उनके समाज के लोग भी मेरे साथ सपोर्ट में है। आज व्यापार बंद करके पूरा उबली प्रोटेस्ट किया उन्होंने, पूरा हमारे को उनका समाज के लोग आके अंजुमन इस्लाम से मेरे को बोला है धैर्य रखो, हम आपके साथ हैं। मैं कम्युनल नहीं दे रहा हूँ, कम्युनल का वो मदर जो बयान दी है ना, वो गलत बयान दे रही है, वो एक्चुअली वो कम्युनल का सपोर्ट लेने के लिए चाह रही है, कोई सपोर्ट में नहीं आने में वो कह रही कि उसको फांसी पे चढ़ाओ, फांसी पे चढ़ाओ करके आज बोल रही है। पर अगर आप खुद कह रहे हैं, उसका माताजी को भी ये आरोप स्थान में वो आरोपी है, उसको सपोर्ट किया हुआ है, उसको प्रवोक किया हुआ है, नया 1 साल से जानती है, उसके साथ फ्रेंडशिप था, वो उसके साथ वो अपना क्या कहते हैं वो प्रपोज कर रहा था, तो उसने रिजेक्ट, अभी बोल रही है, उससे पहले उसको पता था ना उसका बेटा क्या कर रहा है, पर ये पता था, क्यों नहीं पुलिस प्रशासन को बोलना नहीं है? चलो उनके समाज के लोग बोलना था, या नहीं तो मेरे को बोलना था, या नहीं तो कॉलेज इंस्टीट्यूट को बोलना था।
चलो नेहा को डायरेक्ट बात करते थे, तभी तो बोलना था, क्यों नहीं बोला भाई? पर अगर सब खुद मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आपके साथ खड़े हैं, उन्होंने आपके साथ बंद किया है, तो फिर इसको लव जिहाद कैसे कहा जा सकता है? क्या इसमें जो पॉलिटिक्स भी आ गई है कि एक तरीके से आपको पॉलिटिकल मोहरा बनाया गया है? बीजेपी के अध्यक्ष आपसे मिलने आए, बीजेपी ने आपके लिए प्रोटेस्ट किया है, तो क्या आपको बीच में रख करके एक पॉलिटिकल फाइट हो रही है? नहीं, मैं कोई, मेरे को बीजेपी से मोहरा नहीं बनना है। मेरे को पॉलिटिक्स आज ही मैं रिजिग्नेशन देता हूँ। मैं ऐसा रहे तो कोई मैं ऐसा इल्जाम लगाया तो मैं ताबड़तोड़, मेरे को मेरा जो निगम परिषद है मैं आज ही रिजाइन करता हूँ। मेरे को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मेरा बेटी का देहांत हुआ है, अगली बेटी नहीं मरना करके लिए लड़ रहा हूँ मैं। पूरा समाज खड़ा है, पूरा राज्य खड़ा है, देश खड़ा है। आज जेपी नड्डा जी आए तो उसके लिए राजनीति बन गई है, ये इश्यू राजनीति हो जाता है। मैं बीजेपी का मोहरा बन जाता हूँ क्या? मैं बीजेपी में ज्वाइन हुआ हूँ? गलत बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, और इसको मैं 100% रिफ्यूज करता हूँ इस बात को। उन्होंने अपनी बेटी समझ के आई है। देश में ऐसी दुर्घटना घटने के बाद वो भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका मॉरल विचार है, उनका एजेंडा है, वो भी वो लोग सांत्वन बोलने के लिए मेरे घर पे है, मेरे को हिम्मत पढ़ने के लिए आए हैं और मेरा परमिशन लेके आए हुए। उन्होंने बोला आके मेरे को बोला धैर्य रखो, न्याय मिलने तक हम भी आपके साथ। कोई बीजेपी पे आने के लिए ऑफर नहीं दिया, ना कोई ये किया, ऐसा कोई राजनीति की बात ही नहीं हुई है। इसको राजनीति मत इन्वॉल्व करना। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कोई भी मीडिया में आया नहीं है आज दिन तक। मेरे पार्टी वाले कोई भी बोला तो वो गलत है, उधर ही मैं विरोध करता हूं उस बात को। उनको सब मालूम है मैं कैसा कार्य करता है। आखिर में आप राहुल जी और प्रियंका जी को कुछ बोलना चाहेंगे? वो तो अपना देश के नेता है, राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी अलग पार्टी के मेरे को सांत्वन बोलने के लिए आए। मैं आपको आना करके आग्रह नहीं कर रहा हूँ, या नहीं तो मैं मेरे को बुलाव नहीं दे रहा हूँ। मैं, उनका मॉरल राइट है, वो भी एक औरत है, उनका भी बेटी है, उनका पार्टी का कार्यकर्ता का हत्या हुई है, बेटी का हत्या हुआ है, निगम परिषद का हत्या हुआ है, तो इसीलिए उनका मॉरल राइट होता है। अगर आप चुनाव में बिजी है, हम ये नहीं कहते कि सभी लोग भी बिजी थे लेकिन आके गए, आपका इच्छा है। आपका पार्टी का कार्यकर्ता पीछे रहे तो आगे आपको कार्यकर्ता और बढ़ेंगे और नेता बढ़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी में आए तो मेरे को न्याय मिलेगा, कुछ हमारे घर में इंसिडेंट हुआ तो पीछे खड़े रहेंगे करके विश्वास बढ़ेगा। मैं सीएम का भी मेरे को रिपोर्ट आई है कि मुख्यमंत्री जी आपको शुक्रवार को डेट दिया हुआ है, ऑलरेडी टीपी आ गया, वो भी आ रहे हैं। ये नेशनल लेवल इश्यू होने के बाद राहुल गांधी जी को पता है, प्रियंका गांधी जी को पता है। मैंने सुना है सुरजेवाला जी ने इंस्ट्रक्शन दिया इमीडिएट इनको सीरियसली एक्शन लेने के लिए। मेरे को ऐसे रिपोर्ट आई है इंटरनल, मेरे को भी थोड़ा ये आया है थोड़ा, इसलिए मैं चाहता हूँ, पार्टी नेता है, मैं डिमांड भी नहीं करता, लेकिन मेरे को न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, आप साथ देना करके मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के मेरे को न्याय देना, उतना मेरे बेटी को आत्मा को शांति देना, और दूसरा बेटी किधर भी ऐसा हत्या नहीं होना है, वो मैं डिमांड करता हूँ। और हत्या होने से और ऐसे ही प्रकरण में आपका भी नाम बदनाम होगा करके मैं विनती करता हूँ। Justice should definitely be done to the woman who has passed away, but the politics aside, the truth of what actually happened to her, that needs to be unveiled one way or the other. निरंजन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, and sorry for your loss. Peace to the soul of Neha. Thanks for watching.